Right now we are going to start a new chapter from your biology textbook, that is nervous system. Are you ready to learn this chapter or you are nervous? Ready. Okay, fine. See, look at this diagram. We have to start our chapter with this diagram itself. What can you see prominently in this diagram? Nerves. Can you see a brain? Here. Then a spinal cord. And there are blue color ka various nerves. We can categorize, okay, we can divide this nervous system into two parts. One is the central nervous system, which is composed of brain and a spinal cord, and all other blue nerves and all other blue segments which you see, they are the nerves. Okay, and it is called the peripheral nervous system. So nervous system can be divided into two. One is the central nervous system. Brain and spinal cord is a part of a central nervous system, and all other things, so and all different kinds of nerves, these blue segments are all is a part of a peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. Is this much clear? Now, structural and the functional unit of this nervous system. Yeah, what is the functional and the structural unit of nervous system? So your answer is neuron. Give the technical term. So यहाँ से start हो जाता है point number 2 से, and ये हमारा first important question है, and you can expect this question. Neurons are the structural and the functional unit of a nervous system. Any doubt with point number 1? No, sir. अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ अबाउट दिस न्यूरॉन्स. तो कुछ टेक्स्ट बुक में है, कुछ एडिशनल होंगे. वी आर बॉर्न विथ सर्टन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड दैट नंबर इज कांस्टेंट थ्रू आउट आवर लाइफ. इफ यू लूज अ पर्टिकुलर न्यूरॉन, यू लूज इट परमानेंटली. हाँ, तो बहुत बार होता है, यू फॉल डाउन, हाँ उंगली टूट जाता है, डॉक्टर दे सेट तो कर लेते, लेकिन वहाँ सेंसेशन ही कम हो जाता है. वहाँ के शायद जो न्यूरॉन्स है वो दे आर डेड. ओके, आँख में कभी कभी होता है, कुछ नर्व्स होते हैं, उनका सेल डिवीजन नहीं होता. सो वंस यू लूज दैट पार्ट ऑफ योर आई, ओके, इट इज़ लॉस्ट कंप्लीटली. बाकी क्या हो जाएगा, बाकी ऑल ओवर योर बॉडी सोमैटिक सेल्स, वहाँ कट्स होगा, ब्रूजेस होगा, तो दे द सेल सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल अंडरगो सेल डिवीजन, सो दे रिपेयर देमसेल्फ. बट दैट रिपेयरिंग इज नॉट पॉसिबल विथ दिस, right? And we can compare these neurons with the wires, electrical wires, which carry electric signals from the source of the power to the appliance. तो ये भी ऐसा ही कुछ काम करता है. तो ये वायर के जैसा ही, just like a wire in a electrical circuit, okay, does a function. न्यूरॉन का भी वैसा ही फंक्शन होता है. that is a reason neuron are the longest cell in the human body. Okay, anyway सारे क्वेश्चन ह्यूमन रिलेटेड ही होंगे, बिकॉज आवर सिलेबस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन एनाटॉमी. ओके, सो अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. सो दिस न्यूरॉन. ओवर 100 बिलियन, मैंने तो शायद गलत नंबर बताया, मिलियन वगैरह बोला. ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स अकर इन अ ह्यूमन बॉडी. 100 बिलियन न्यूरॉन्स अकर इन अ ह्यूमन बॉडी. ओके, A neuron or a nerve cell has 3 parts. यहाँ से important start हो जाता है. There are 3 parts. Okay, see here, I'll show those three parts in this diagram. So do you see this spherical part, a head-like structure? Okay, this is first part. इसको 3 नाम है आपके टेक्स्ट बुक में. हाँ, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी आया था. ओके, आई टेल दैट कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया था. दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, or it is also called cyton. Also it is called peri, around. Okay, peri, carrion. Carrio means क्या, न्यूक्लियस. यू नो ना, पेरियो अराउंड. ओके, तो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरी कैरियन. ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना है. आई टेल यू अ बोर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल बॉडी of a nerve, of a neuron. What is the cell body? एक word use किया. What is the cell body of the neuron called? तो your answer should be, most expected answer is cyton. ज़्यादा लिखो, because most of the time we are going to use this word cyton.
ओके, पेरिकैरियन वगैरह रेयरली, बट यू शुड नो दैट, ओके, यू शुड नो दैट वर्ड, राइट, क्योंकि एमसीक्यू में आ गया, इफ साइटोन इज नॉट गिवन, पेरिकैरियन इज गिवन, देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट वर्ड, ओके। तो ये वाला पार्ट है, इज इट फाइन? ये पूरा आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड, ये पूरा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट दैट वाज 2 years बैक, ओके। सो फर्स्ट पार्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बट दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। और ये देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, बाल जैसे, हाँ, बिखरे बाल नहीं बनाया, ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ओके, दे आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स, दे आर कॉल्ड डेंड्रॉन, ठीक है। और ये लंबा वाला टेल जो दिखाई दे रहा है, ओके, दिस टेल, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। देन दिस पार्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड, कुछ पार्ट हमको याद रखने, बायड करके रखने, उनका फंक्शन वगैरह, लोकेशन, वी विल सी दैट, बट every neuron has this 3 part. First part is called the cell body or cyton or perikaryon, right? Karyo means nucleus, around nucleus, okay। तो ये जैसा सेल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस, जैसा आप लोग देखेंगे, आई कुड सी इन दिस डायग्राम, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है इसमें, ओके। देन आई कुड सी गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म तो डेफिनेटली है ही। सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर लोकेटेड ओवर हियर। देन एक्सॉन, एक्सॉन ये डंडी, राइट। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट, ठीक है। ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, फाइन। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है दिस पॉइंट, हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, अगेन न्यूरॉन। देन नंबर तो नहीं पूछते, देन 3 parts ऑफ अ नर्व सेल और अ न्यूरॉन, सो सेल बॉडी और साइटोन और पेरिकैरियन, देन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ठीक है। पहला एक एक पार्ट करके देखेंगे। possess a well defined nucleus, चलो ठीक है, मैं ये रीड करके नहीं दिखाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू इन माई ओन वे, राइट। तो कैन यू सी दिस डायग्राम ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड योर पेंसिल, वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। बता दूंगा अगर आप, इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग नो प्रॉब्लम, अगर ड्राइंग में अच्छे नहीं हो, लाइक मी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट हाँ, मैं ये डायग्राम एकदम अच्छे से बना सकता हूँ, आई नो द टेक्निक, हाँ, और मेरा मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा, और देखकर आपको लगेगा नहीं कि आई एम नॉट गुड एट डायग्राम, ओके। सो दिस इज साइटोन और सेल बॉडी और पेरिकैरियन, ओके, ये वाला पार्ट, हाँ, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, हाँ, और न्यूक्लियस के बाद में दीज आर ऑल डेंड्राइट्स, राइट, दीज आर ऑल डेंड्राइट्स। देन ये डंडी जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, अंदर वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको जो कवर किया उसका अलग नाम है, ओके, विल कम टू दैट नेम ऑल्सो, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, और ये डंडी जो है उसको कहते हैं एक्सॉन, एंड हो गया, तीनों हो गया। और ये जो है नर्व का एंड है, सो दे आर कॉल्ड नर्व एंडिंग, ओके। अभी हम लोग अंदर का पार्ट देखते हैं, ओके, ए नर्व एंडिंग आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो दिस सेल बॉडी, ये देखो सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर दिस साइटोप्लाज्म हैव सम ग्रैन्यूल्स, ओके, कुछ ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल, they are called Nissls granule, is it okay? साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर, हम लोगों ने देखा था WBCs अलग अलग टाइप का होता है, इफ यू रिमेंबर, ग्रैन्युलर WBCs एंड अग्रैन्युलर WBCs, ओके। तो वैसे इसका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, तो इसके ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, ऑलराइट। देन सेल है तो न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, सो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, एंड ये जो आप लोग उसके ऊपर कवरिंग देख रहे हैं, दिस कवरिंग, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ, यहाँ देखो नाम लिखा है माइलिन शीथ, एंड ऑन अ माइलिन शीथ यू विल सी अ डॉट, ओके, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड श्वान सेल। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट लिसन कि आप लोगों को याद रहेगा कि ये श्वान शेल जो होता है वही ये माइलिन शीथ बनाता है। You can have a neuron with myelin sheath or without myelin sheath. There is an advantage of myelin sheath. We will talk about this myelin sheath. Okay? समझ में आया ना myelin sheath. So if this is axon, if I am concentrating on this part, तो उसके ऊपर सिंपल ऐसा बना दो कि ये स्ट्रक्चर है,
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ये ट्रांसपेरेंट होता है, यू कैन ओके इमेजिन कर सकते हो कि ये अगर एक्सॉन है तो इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लाइक बोलते हैं ना जेली के जैसा वैसलीन का कोटिंग है, हाँ सिलेंड्रिकल कोटिंग, सो दैट इज माइलिन शीथ। और इसके अंदर एक सेल है विच इज कॉल्ड अ श्वान सेल, श्वान सेल, और ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ अ माइलिन शीथ, राइट, माइलिन शीथ। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, अ गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ्स, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। ये नोड ऑफ रैनवियर जो है ये बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इनफैक्ट यू विल सी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, एंड ड्रॉ लेबल एंड draw a diagram and label the parts. Only 3 parts they have asked you to label for 3 marks. उसमें एक पार्ट जो था वो था नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, हैव यू कवर्ड एवरीथिंग? यस। अब बचा ये जो लास्ट वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। तो ये एक्सॉन जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ओके, ये एक्सॉन जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल एंड पॉइंट। इज इट क्लियर? तो व्हाट कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, साइटोन और पेरिकॉन possess a well defined nucleus, prokaryotic cell and eukaryotic cell, okay, eukaryote. So nucleus is well defined, and granular cytoplasm. Cytoplasm is not just a watery part, but you will see some granules in this, and these granules are called Nissel's granule, right? It has cell organelles like other cells, so mitochondria, Golgi apparatus, then what? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, वो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। इट हैज सेल ऑर्गेनेल लाइक सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, नो पावर ऑफ सेल डिविजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, okay, no centrosome, so no power of cell division. So if you lose your nerve, you lose it permanently, right? And as a person ages, उसका ये न्यूरॉन जो है दे बिकम वीकर एंड वीकर। इसलिए आप लोग देखेंगे योर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर उनको कुछ बात बताएंगे तो उनको वो प्रोसेस करने के लिए दे टेक एक्स्ट्रा 1 or 2 सेकेंड, वो सोचते हैं एंड देन दे रिएक्ट, राइट? इवन कुछ हो रहा है, इफ सम डेंजर इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स देम, तो उनको समझना कि दिस इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स देम, देन व्हाट रेमेडी दे हैव टू टेक, इट टेक्स सम टाइम. All their reflexes have become weak. Even we see that sports person, they retire at the age of at an age between 32 to 35 years. I have seen teachers who are 70 plus, still they are active in their field. But sports person, they retire at this early age. Why? Because जैसे वो एज हो जाता है तो उनका रिफ्लेक्स स्लो हो जाता है. सपोज क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, इन हिज वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड कि आई एम एजिंग सो माई रिफ्लेक्सेस इवन बाय अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्स स्लो हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग अ 6 यू माइट गेट आउट एट अ बाउंड्री, या ज़्यादा एज हो जाएगा तो बाउंड्री पर भी बॉल नहीं पहुंचेगा. सो नो सेंट्रोसोम, सो नो सेल डिविजन, राइट? देन व्हाट आर दी अदर पार्ट्स? तो वी हैव सीन साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स है विच इज कॉल्ड Nissel's granule, and attached to this cell body or cyton or perikaryon क्या होता है? Dendrites. They are branch cytoplasmic projection of a cell body. They reach to the remotest part of the body. यहाँ टच करो, ओके, यहाँ टच करो, यू कैन फील द सेंसेशन ऑफ टच. क्यों? क्योंकि नर्व का डेंड्राइड यहाँ पर पहुँचा, ओके. यहाँ पर डेंड्राइड क्या करता है? तो वो सिग्नल को कैच करता है, इट कैरीज द सिग्नल और वो लेकर जाता है दूसरा, ओके, वेर एवर इट शुड गो. वी विल टॉक अबाउट इट, ओके, फाइन. समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पिकअप करता है. डेंड्राइड क्या करेगा? आपके सिग्नल्स को जो है सेंसेशन को पिक करेगा. और ऐसा हो सकता है कि दिस इज कॉल्ड, ओके, ये लास्ट वाला इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब. साइनेप्टिक नॉब. तो लेट मी टॉक अबाउट दिस साइनेप्टिक नॉब. ये साइनेप्टिक नॉब है, राइट? दिस इज अ साइनेप्टिक नॉब. ये कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को? तो एक्सॉन टर्मिनल में मिलेगा, ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्मिनल, ओके. अब आप देखेंगे कि एक नर्व, ओके, एक न्यूरॉन जो है वो एंड हुआ,
ओके, इट एंडेड एट दिस पॉइंट, खत्म हुआ। तो जो दूसरा न्यूरॉन होगा, ओके, वो यही से स्टार्ट होगा, ओके, यही से स्टार्ट होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ओके, दैट इज कॉल्ड अ साइनेप्टिक नॉब। और इसके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। व्हाट इज दैट कॉल्ड? साइनैप्स। अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू साइनैप्स विल कम। चलो अभी बात निकली है तो आपको बता ही देता हूँ। सो व्हाट हैपेंस, सपोज, जरा ध्यान से सुनो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझेगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट, ओके। यू टेक अ पॉइंटेड पेंसिल एंड यू प्रिक इट ऑन योर स्किन, ऐसा हो गया समझो, ओके, वेरी लाइटली। ऐसा अगर प्रिक करेंगे तो यू फील दैट सेंसेशन। तो समझो कि यू आर अंडर गोइंग अ ब्लड टेस्ट और डॉक्टर ने बोला कि व्हाट आई विल डू इज आई टेक अ नीडल, इसमें प्रिक करेंगे और खून निकालेंगे, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? स्टार्टिंग से वो डॉक्टर ने ऐसा ही किया तो यू विल स्टार्ट क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, ओके, पहले ही, बिकॉज वो सेंसेशन होता है। तो जनरल, सो वी आर नॉट डूइंग दैट। अगर आप लोग पॉइंटेड पेंसिल, पेन पेंसिल लेकर आप प्रिक करेंगे, सो यू गेट अ सेंसेशन। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, तो व्हेन समबडी प्रिक यू, कुछ केमिकल, सम केमिकल, ओके, केमिकल्स जो है तो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और डेंड्राइट क्या करता है, इस केमिकल सिग्नल को इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, राइट। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल डेंड्राइट ने पिक किया और वो यहाँ से ट्रैवल करता है, एंड इट रीचेज द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। समझा कि नहीं? यहाँ पहुँच गया। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ओके, ये डेंड्राइट था, द पॉइंट वेयर यू हैव प्रिक्ड योर स्किन, वहाँ पर ये डेंड्राइट था। तो सम केमिकल, ओके, केमिकल एक्टिविटी हैज हैपेंड, सम केमिकल सेक्रेशन हैज हैपेंड, ओके, सम केमिकल सेक्रेशन हैज हैपेंड। और वो केमिकल सिग्नल जो है डेंड्राइट ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो है कन्वर्ट किया, एंड दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल, ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल। अच्छा, आप लोगों को बता दूं ये ऐसा ट्रैवल करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ माइलिन शीथ? व्हाट इज द यूज ऑफ अ माइलिन शीथ? माइलिन शीथ अगर होगा ना तो इम्पल्स जो है वो फास्ट ट्रैवल करता है। आर यू गेटिंग इट? इफ देर इज अ माइलिन शीथ, ओके, इफ देर इज अ माइलिन शीथ, कैसे फास्ट ट्रैवल करेगा? तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। समझ में आएगा? इट विल गो हॉपिंग, या जंप कर करके जाएगा। सो ये माइलिन शीथ का जो है वो एडवांटेज है। अ न्यूरॉन विद अ माइलिन शीथ, इसका इम्पल्स जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो पहले क्या हुआ, इसलिए नर्वस में आप लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा था एंडोक्राइन में। सो दैट इज अ केमिकल एक्टिविटी, और एक्टिविटी बाय अ हार्मोन, एंड हार्मोन्स आर कॉल्ड अ केमिकल मैसेंजर, राइट। बट यहाँ केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। First chemical signals are produced, then that is converted into electrical signals. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. अभी ये एक नर्व जो ये एंड हुआ और दूसरा नर्व जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड बिटवीन दिस टू देर इज अ गैप विच इज कॉल्ड साइनैप्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ओके, इससे रिलेटेड पिकअप एनी पेपर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। Now when this electrical signal comes here, this electrical signals again get converted into chemical signals, and these chemicals, okay, these chemicals are released in this synaptic cleft or a synapse. समझ में आ रहा है ना? स्टार्ट स्टोरी कहाँ से हुआ था? with chemical, okay, with some chemicals. These chemical signals are converted into electrical impulse. They travel, अगर माइलिन शीथ होगा तो फास्ट ट्रैवल करेगा, इट विल जम्प टू नोड ऑफ रैनवियर, ओके, और यहाँ पहुँचेगा टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पर है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक नॉब, ओके, एंड बिटवीन टू साइनेप्टिक नॉब देयर इज अ साइनेप्टिक क्लिफ्ट. So at this synaptic knob, your electrical symbol will again get converted into a chemical signals, and chemical will be released into this synapse. समझ में आया कि नहीं? देर आर वेरियस केमिकल्स, उसमें से एक केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन. ये याद रखो अगेन. हाँ, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Is it clear this much? Yes, sir. अब आगे देखो, ये केमिकल जो है अगला न्यूरॉन पिक करेगा.
तो अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, अगेन केमिकल सिग्नल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इज इट क्लियर? तो जो मैंने बातें बताई ना, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। जो भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट, आई कीप ऑन टेलिंग कि दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ सुन लो, इसको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना। हाँ, तो दीज ऑल एक्टिविटी, साइनेप्स के रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है। और टीचर लोगों को मालूम है, एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, बच्चों को एग्जाम में याद नहीं आएगा एंड दे विल लूज द मार्क। कैन यू टेल मी विच इज अ पार्ट विच इज नंबर्ड 1? 1 वाला कौन सा पार्ट है? Dendron. सिंगुलर इज डेंड्रॉन। ओके, एक ही पर, ओके, डेंड्रॉन या डेंड्राइट। ओके, लेट अस से डेंड्रॉन। वेयर इज 2? वेयर इज 2? 2 किधर है? हाँ, मिला 2, वेरी इजी। व्हाट इज 2? 2 इज न्यूक्लियस। व्हाट इज 3? वेयर इज 3? यस, ओके, ये साइटोन है, साइटोन। और पेरिकैरियन और सेल बॉडी। अच्छा, व्हाट इज 4 नंबर? Myelin sheath. माइलिन शीथ। ओके, व्हाट इज 5? 5th वाला इज एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, या नर्व एंडिंग भी चलेगा, एक्सॉन टर्मिनल, राइट। 6 is a gap between 2 myelin sheath, that is called node of Ranvier. नोड ऑफ रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह एक फिर बॉलीवुड एक्टर है। नोड ऑफ रणवीर 7 है? 7 नहीं है, डायरेक्ट 9। हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाट इज 9? इज इट एक्सॉन? कभी कभी ऐसा बीच में मार्क करते हैं, तो वो एक्सॉन होता है, बीच वाला डंडी। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, एक्सॉन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, लंबा होता है क्योंकि ये वायर के जैसा है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी। दे आर एमर्जिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, राइट। इट वेरीज इन लेंथ, वो छोटा भी हो सकता है ऑफ सम फ्यू मिलीमीटर्स, और इवन मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है, और इट्स लेंथ कैन बी जस्ट 1 millimeter ऑल्सो। In most neuron, it is surrounded by white insulating sheath. What they have said? Most. They have not said in all neurons. This myelin sheath is there. Okay. So covered by myelin sheath by an outermost thin. हाँ, ये भी एक important. How did I forget this? हाँ, कभी कभी पूछते हैं, गिव अ टेक्निकल टर्म, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, ओके। तो ये माइलिन शीथ जो होता है, आई टोल्ड जेली लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ओके, इसके ऊपर जो कवर होता है ना, दैट इज न्यूरोलेमा। माइलिन शीथ का कवर जो है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ कुड आई फॉरगेट दिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और नोट्स में अगर कोई इटैलिसाइज दिखा तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इटैलिसाइज प्लस अंडरलाइन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, वो इटैलिसाइज भी था और वो अंडरलाइन भी था। इज इट ओके? So myelin sheath is covered by the outermost thin sheath, which is called neurolemma. Okay, exam में question आया था, what is neurolemma? Okay, student were in fix कि क्या लिखे। Myelin is formed by a Schwann cell. We have seen that myelin sheath के अंदर पहले तो Schwann shell होता है, and they produce the myelin sheath, right? So Schwann cells are responsible for that. Myelin sheath shows a gap through the length, which are called nodes of Ranvier. Some axons may have side branches also. कुछ में side branch भी हो सकता है, okay? Side branch हो सकता है, called collaterals. ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, but it has a potential कि पूछ सकते हैं एग्जाम में। Okay, what is the location of collaterals? They are the side branches of neurons. Clear? Now look at the diagram, you will see that ये dendrites है, then cell body, then axon. ये axon में myelin sheath नहीं है, okay, then axon terminal, okay, and you can see एक खत्म हो गया, axon खत्म हो गया और दूसरा dendrite स्टार्ट हुआ, okay, वो ये वाले पार्ट को यहाँ पर हाईलाइट किया है, okay, already I have shared this file with you, आप आपके स्क्रीन पर जूम करके देख सकते हो। हाँ, तो एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो है
एसिटाइल कोलिन इज न्यूरो ट्रांसमीटर। 12th का अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो 4 केमिकल का नाम है, 4 न्यूरो ट्रांसमीटर। 10th के बुक में एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। व्हाट इज एसिटाइल कोलिन? दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ लोग मालूम है ना बहुत हिस्टेरिकल होते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो उनको जल्दी से डर लगता है। हाँ, कुछ लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, वो सब ये होता है जैसा मुन्ना भाई MBBS, इफ यू हैव सीन दैट मूवी, तो उसको गांधी जी दिखाई देते हैं। सो वो केमिकल लोचा था, वो लोचा वॉज अबाउट फ्रॉम दिस न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करते हैं ओके सिग्नल्स, उसमें प्रॉब्लम होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस, तो एक्स्ट्रा सेंसेशन या नो सेंसेशन ओके, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, राइट। तो बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सम केमिकल एक्टिविटीज विच इज गोइंग इनटू योर बॉडी, राइट। एट योर एज यू गेट लॉट ऑफ पिंपल्स, व्हाई? क्योंकि यही एज होता है, दिस इज योर ग्रोइंग एज, लॉट ऑफ चेंजेस हैपन्स इन योर बॉडी, बहुत कुछ अंदर चल रहा है। सो सम हार्मोनल सेक्रेशन एंड ऑल, हाँ, बहुत सारा ऑयल सेक्रेट करता है आपका सीबेशियस ग्लैंड। सो दिस कैन हैपन। न्यूरॉन खत्म हो गया एंड डेंड्राइट, जहाँ से नया नर्व स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे हम लोग वायर को ज्वाइंट करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल विल पास फ्रॉम वन वायर टू दी अनदर वायर इन केस इफ वी हैव अ शॉर्ट वायर। एक मैं आप लोगों को इम्पल्स का एक पिक्चर दिखाता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। Yes, sir. हाँ, दैट इज इलेक्ट्रिकल impulse. I'll be using this word again and again, impulse, impulse, impulse. Okay, तो डेंड्राइट उसने सिग्नल ये किया, कलेक्ट किया, एक्सॉन में गया, एक्सॉन से आगे गया, दिख रहा है लंबा ब्रांच है, और नीचे दूसरा नर्व होगा। आई शो यू 3D पिक्चर ऑल्सो, डोंट वरी। राइट नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इम्पल्स प्रॉपरली। दिख रहा है आप लोगों को? देखो, दोनों इम्पल्स साथ में स्टार्ट हुआ, बट वेयर इट इज ट्रैवलिंग फास्टर? ये गिवन डिस्टेंस, हु कंप्लीट दैट गिवन डिस्टेंस फास्टर? पहले किसने कंप्लीट किया? फर्स्ट वाला न्यूरॉन की सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ माइलिन शीथ। समझ में आएगी नहीं? इट हैज अ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में क्या होता है? यहाँ जंप करता है, इस डायग्राम में दिखाया, बट इट जम्प्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू दी अनदर नोड ऑफ रैनवियर एंड इट कवर्स। तो ये माइलिन शीथ अगर होगा तो ये इम्पल्स जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कैन यू सी द गैप इन Node of बिटवीन? Rambir. नहीं रे, वो तो नोड ऑफ साइनैप्स, that is called synapse or a synaptic cleft. Synaptic cleft. Is it clear? Yes, sir. Yes. चलो, I have one more diagram, one more picture, same इसका, देख रहे हैं आप लोगों को? हाँ, सी यार क्लियरली दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, बट यू विल सी दैट there are certain chemicals in those spherical bodies and these chemicals are released. मैंने बताया था ना आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल पहले क्या होता है? द पॉइंट, जहाँ पर सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, जनरली दिस सेंसेशन आर प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स and that chemical signal is converted into electrical impulse which travel through the axon, and when it travels from one neuron to the another neuron, so again these electrical signals are converted into chemical signals, and these chemicals are released in the synaptic cleft or synapse, just synapse, आपको एग्जाम में synapse ही लिखना है, okay, synapse, and that is picked by the dendrite of the another cell, by the another cell or a neuron, right? And in this way electrical impulse or a signal moves from one neuron to the another neuron, and finally it first reaches the spinal cord. Yes, sir. See, I have given lots and lots of diagram in my notes which you will not find in your textbook, तो understand होना easy हो जाएगा, okay? The end portion of the axons, the end portion of the axons have swollen ends. Swollen मतलब ये फूगा हुआ, सूजा हुआ दिखाई देगा, okay? Like bulbs which store certain chemicals called neurotransmitter.
neurotransmitter is a common name for the chemicals. There are various different kinds of chemicals, and one of those chemicals is acetylcholine. You have to remember only one name. Okay, name one neurotransmitter, so that is acetylcholine. Acetylcholine is the chief neurotransmitter, is the main neurotransmitter. Gaps between the terminals and the nearby dendrites are called synaptic clefts. Is it clear? Synapse, वही gap, synapse. It is a point of contact between terminal branches. Terminal मतलब end points, branches of the axon of the neuron with the dendrite of the another neuron separated by a fine gap. Look here. दिख रहा है आप लोगों को? ओके, ये देखो, यहां से सिग्नल आया. ओके, ये देखो, दिस इज अ मेन. ओके, ये एक प्रिंसिपल जो है न्यूरॉन है, यहां से सिग्नल आया, राइट. देन दीज आर नर्व एंडिंग्स. हाँ, 1 2 3 4. ओके, और आगे ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये नेक्स्ट नर्व के, नेक्स्ट न्यूरॉन के, ओके, नेक्स्ट न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट्स है. समझ में आ रहा है? ब्लू वाला. सो एक, यू सी दैट एक न्यूरॉन ने कितने सारे न्यूरॉन को सिग्नल पास ऑन किया, राइट ना. एंड इट ऑलवेज सिलेक्ट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. हाँ, और उसका अल्टीमेटली उसको कहाँ जाना है? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन. ब्रेन में प्रोसेसिंग होगा, अगेन बैक टू स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये ऑर्डर उल्टा पुल्टा लगाया. यू हैव टू अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी. द केमिकल विल सून ब्रेकन डाउन. कितना फास्ट होता होगा ये एक्टिविटी. ओके, केमिकल इज सून ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम टू मेक साइनेप्स रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रांसमिशन. ओके, now speed of the nerve impulse and speed of electricity. If you compare the speed of the nerve impulse and speed of electricity, आपको क्या लगता है कौन फास्ट ट्रैवल करता होगा? your electric current or your this impulse. Electricity is conducted through a wire, metal wire, at a speed of about 1,50,000 kilometer per second. Okay, this many kilometer 1 second, but nerve impulse travel at a maximum speed of 100 meter per second. Which one is greater? 1 kilometer है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, this will even become more, its value will even increase. Okay, into 10 raised to 1 kilometer is equal to 1000 meter. हाँ, तो what travels faster, electrical signal or our impulse? Obviously, definitely, and so many times. Okay, some basic terms in the nervous activity. बस इतना हो जाएगा. Towards the end we will draw a diagram. Please remember, before we end the class we will draw a diagram. अच्छा, ये तो मालूम है आप लोगों को what is stimulus, what is response. Stimulus is action and response is a reaction. Action and reaction, stimulus and response. Look at this diagram. You will see that a person is touching a very hot utensil. समझ में आया ना, इसने क्या किया, इसको टच किया. ओके, सो इट इज लाइक अ टचिंग इज लाइक अ स्टिमुलस. ओके, फिर क्या हो जाएगा, वो हॉट उसको लगेगा एंड ही विल रिलीज दिस हॉट यूटेंसिल. राइट और रॉन्ग? ओके, so stimulus, an agent or a sudden change of external or internal environment that result in a change in an organism or its body part. Response is the change in the organism resulting due to stimulus. So stimulus is a cause, response is the effect. या ऐसे भी बोल सकते हैं, stimulus is effect. हाँ, effect क्या होता है, cause होता है, and response is the effect, A and E. Okay, ये जो होता है ये कॉज होता है, दैट इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट. पहला इसने देखा था ये कूल था, हाँ, ये ठंडा रख कर गया था, अब कहीं गया कुछ काम करने के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम इज रिटर्निंग एंड उसको ऐसा लग रहा अभी भी कूल ही होगा, वो कोल्ड ही होगा. सो ही टचेस इट
he feels that pain because of this hot pan and he releases his hand. Okay, so releasing change in the organism is the response. By the way, don't worry about this, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बचपन में पढ़ते थे आप लोग, राइट. देन इम्पल्स, अभी अभी डायग्राम दिखाया था, वेव ऑफ इरिटेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट स्वीप्स ओवर अ नर्व सेल. देखा ना, वो सिग्नल जो ट्रैवल करता है, वो देखा था डायग्राम में, इधर भी दिखाई दे रहा है, बट वो मूव कर रहा था, वो जिफ वाला फाइल था. ओके, यहाँ स्टेशनरी है. सो दिस इज कॉल्ड, ये ब्राइट वाला स्पॉट, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स. ठीक है. रिसेप्टर्स, ओके, रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले कवरिंग, ओके, एपिथेलियल सेल आर रिसेप्टर. वो स्टिमुलस को रिसीव करते. ओके, दे स्टिमुलस आर they receive a stimulus. The specialized epithelial cells which on receiving a stimulus set up a wave of impulse toward the central nervous system. Central nervous system is your spinal cord and your brain, spinal cord and brain. तो what will happen कि कुछ स्टिमुलस रिसीव करेगा. ओके, तो एपिथेलियल सेल विल रिसीव अ सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर जनरली इन अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल सिग्नल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन. सो केमिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल impulse which travels towards the central nervous system, that is towards the spinal cord. There are, कभी कभी हमको कुछ आदत पड़ गया होता है. ओके, सपोज आपको ड्राइविंग आता है. ओके, अगर ड्राइविंग आता है, अगर आपको कंप्यूटर गेम खेलने आता है, यू हैव ट्रेन्ड यूर सेल्फ, आफ्टर सम टाइम वो अपने आप होता है, वो अपने आप होता है, यू डोंट थिंक. ओके, तो उस वक्त क्या होता है, सिग्नल जो है ब्रेन के पास जाता ही नहीं है. स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो आपका थंब यहाँ मूव करना है, ये वाला फिंगर में, ओके, कंट्रोलर का ये बटन दबाना है, दिस, ओके, ऑल दिस ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. द मसल विच इज इन्वॉल्व, ओके, वहाँ पर सिग्नल चले जाता है. बट देर आर, अगर आप मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से वो जाएगा इम्पल्स टू अ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगा, कौन सा थियरम यूज़ करूँ, कौन सा फॉर्मूला, टेबल क्या है, और वहाँ से वो आएगा टू योर मसल. ओके, मे बी दैट मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ पेन एंड टू राइट, एंड देन यू विल राइट. इवन इफ यू आर राइटिंग एन एसे, तो ऑटोमेटिकली नींद में ऐसे नहीं लिखते हैं ना. So what you do is you think about an idea, you think about different situation, you process a statement, grammar सब, and then you write. Are you getting it? तो ये epithelial cells जो है, epithelial cell, they are receptor, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो इम्पल्स को रिसीव करते हैं. और ये मसल जो है, मसल, सपोज इफ यू आर राइटिंग, तो मसल रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड अ पेन, टू राइट, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टर, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टर. मसल और ग्लैंड, ओके, कभी कभी कुछ सिग्नल आता है एंड सेक्रीशन हैपन्स. ओके, जैसे आप लोगों को डर लगता है, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ मेरी गो राउंड. आई ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस कि मेरी गो राउंड जब यहाँ से यहाँ टर्न होता है, दिस टॉप पर, तो सम कोल्डनेस आई कैन फील इन माई हार्ट, इन माई बॉडी. ओके, तो मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ मेरे ग्लैंड्स कुछ केमिकल को सेक्रीशन करते होंगे एंड आई गेट कोल्ड फीट्स एंड माई कोल्ड पाम्स. ओके, तो उसके वजह से होगा. सो ये इम्पल्स जो है दैट गोज टू अ पर्टिकुलर मसल. जब आपको बॉडी पार्ट को मूव करना है, देन मसल, एंड इफ फॉर सम सेक्रीशन देन इट गोज टू अ ग्लैंड. ऑन रिसीविंग अ इम्पल्स फ्रॉम अ ब्रेन और अ स्पाइनल कॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रीट अ सब्सटेंस. ओके, अगर मसल होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर ग्लैंड होगा तो वो सेक्रीशन करेगा. इज इट क्लियर? मूवी देखते हैं, यू फील लाइक लाफिंग, यू फील लाइक क्राइंग, तो मे बी वो सेक्रीशन ग्लैंड्स कुछ आपके अंदर जो है इमोशंस प्रोड्यूस करता है. कुछ लोग होते हैं इमोशंस होते नहीं उनमें, या बहुत कम इमोशंस होते हैं. हाँ, वो कुछ भी देख लेंगे, दे आर अनमूव्ड, तो मे बी उनके न्यूरो ट्रांसमीटर रिलेटेड टू मोशन दैट इज नॉट दैट वेल डेवलप. नाउ सी स्टिमुलस इज अ सिग्नल. सपोज यहाँ क्या किया, कुछ नेल लिया, पिन लिया और या प्रिक किया. So what will happen? यहाँ रिसीव हुआ सिग्नल, राइट, यहाँ रिसीव हुआ सिग्नल. इनिशियली इट इज अ केमिकल सिग्नल. फिर नर्व क्या करता है, डेंड्राइट्स को इसमें कन्वर्ट करता है, किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. यहाँ से वो जो है, हाँ, यहाँ गया,
हाँ, अब ये देखो सिग्नल ब्रेन के पास भी नहीं गया, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. यू हैव स्टडीड दिस रिफ्लेक्स आर्क अर्लियर ऑल्सो. ब्रेन के पास गया ही नहीं, इट इज लाइक अ आर्क. मालूम है ना, मैथ्स में पढ़ते आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. व्हेन यू कंप्लीट अ रोटेशन, you complete a rotation of your compass, you get a circle, but if your rotation is incomplete then you get a arc, right? तो ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, ओके, और स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ पर आया, ये मसल पर आया. दिस मसल ओके पुल्स द लेग बैकवर्ड. पहले लेग इधर था, ये पीछे चले गए. दैट इज द रिस्पॉन्स. ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान से सुनो. अच्छा ठीक है, बाद में टाइम एक के बाद एक पढ़ते. एनी डाउट हियर? This is very important. Receptors. Epithelial cells are most of the time receptors. An effector is either your muscle or your gland. Muscle जो होता है वो hand legs को move करने के लिए होता है, body part को, और बाकी जो gland होगा वो secretion करेगा. Okay, that is you get a feeling of happiness or sadness, हाँ, or you are scared. जो feelings जो होता है that is because of some secretion by gland. Is it clear? Any doubt anywhere? Any doubt? No, sir. आगे बढ़े. अभी जरा ध्यान से देखो, इसमें का कुछ पार्ट ओके टेक्स्ट बुक में जैसा दिया था, आई हैव मॉडिफाइड दैट पार्ट, बट स्टेटमेंट जो तो टेक्स्ट बुक का ही है. मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर एक्सेप्ट ओनली सेलिना टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट. तो वेर एवर रिक्वायर्ड आई हैव डन दैट, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये ईजी कर दिया. ठीक है, ये पार्ट जो है बहुत सारे बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता. हैव यू अंडरस्टूड? Have you understood what is neuron? All this time we have been talking about the neuron. तो neuron clear है? Yes or no? Yes, sir. अब देखो, अभी आते हैं नर्व पर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कंफ्यूज न्यूरॉन विद द नर्व. ओके, कुछ बच्चे लोगों को तो नर्व लगता है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है. बिकॉज व्हेन आई करेक्ट द पेपर आई हैव सीन दैट जब नर्व क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत बच्चे लोग लिखते हैं कि वो जिसमें से ब्लड फ्लो होता है. हाँ, दोज वेसल फ्रॉम विच ब्लड फ्लो, वो शायद हम लोग नब्स बोलते हैं हिंदी में, नब्स. ओके, तो वो लोग वो नर्व समझ लेते हैं ट्रांसलेशन. ऑल राइट, जरा ध्यान से सुनो. ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन जिसमें साइटोन है, डेंड्राइड है, एक्सियन है. ओके, दैट इसका जो बंच होता है, इसका बंच, अगर आप लोगों ने कभी आप लोगों का ये वायरिंग सिस्टम डक्ट ओपन किया होगा तो यू सी लॉट ऑफ वायर्स गोइंग थ्रू इट. ओके, तो ऐसा ही है. अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड अ नर्व. दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला दिख रहा है? सी दिस फाइबर्स. फाइबर मतलब क्या, एक धागा, थ्रेड. हाँ, वो न्यूरॉन है. कैन यू सी दिस डायग्राम? कैन यू? अच्छा ये वाला देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये कैन यू कॉन्सेंट्रेट हियर? मैंने सर्कल ड्रॉ किया, कैन यू कॉन्सेंट्रेट देयर? दिख रहा है आपको? ये न्यूरॉन है. तो ये एक न्यूरॉन है, उसका जो बंच होता है न्यूरॉन का, दैट इज कॉल्ड नर्व. इट इज अ बंडल ऑफ अ नर्व फाइबर. ओके, तो नर्व फाइबर, बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ आएंगे तो दैट इज कॉल्ड अ nerve. Can you promise me next time you will not be confused between nerve and neuron? They are totally different. Okay, neuron is a singular unit. What is nerve? So nerve is a bundle of neuron. Nerve is a bundle of neuron. Is it clear? पक्का ना, इसमें confuse नहीं होना. Okay, but टीचर को मालूम है इसमें बच्चे लोग confuse होते हैं, so they frame statement based upon that. ठीक है? Now see there is one more diagram. ये देख रहे हैं आप लोग? ओके, देख रहे हैं? ये रेड और ब्लू वाला ब्लड वेसल है. अपार्ट फ्रॉम दिस इज नर्व. ओके, ये नर्व है और इसके अंदर ये अलग अलग न्यूरॉन्स हैं. राइट? अच्छा, न्यूरॉन्स क्या है? जरा ध्यान से देखो. अगेन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक में बस एक पासिंग स्टेटमेंट, एक हाफ वन स्टेटमेंट दिया है. ओके, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी एंड एक्सॉन. राइट? एक्सॉन लंबा पार्ट होता है, इट इज लाइक अ टेल. तो यू विल सी नर्व के अंदर, ये नर्व जो है उसके अंदर ये फाइबर्स है, ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स का बंडल है. राइट? न्यूरॉन्स का बंडल है. ओके, न्यूरॉन के फाइबर्स, फाइबर थ्रेड को भी बोलते हैं. ओके, तो न्यूरॉन है. तो ये सारे ओके, ये नर्व के अंदर जो है ना, ये नर्व के अंदर जो फाइबर्स है ना, दे आर ऑल एक्सॉन्स.
दे आर व्हाट, दे आर ऑल एक्सॉन। तो फिर इसका बॉडी कहाँ गया, साइटोन किधर गया? तो साइटोन, कैन यू सी हियर, यहाँ पर देखो एक ये स्वोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑल साइटोन्स आर हियर। समझ में आ रहा है ना, ये साइटोन जो है वो इधर है गैंग्लियन में। ओके जैसा एक्सॉन का ग्रुप जो होता है, एक्सॉन के फाइबर्स टुगेदर दे कंबाइन टू फॉर्म अ नर्व। ओके नर्व का ही एक पार्ट होता है, नर्व का ही एक पार्ट होता है वेयर ऑल सेल बॉडीज आर सिचुएटेड, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखो, आई विल गिव मोर एक्सप्लेनेशन। ओके गैंग्लिया इज प्लूरल एंड गैंग्लियन इज सिंगुलर। ओके लुक एट दिस डायग्राम, दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे गैंग्लियंस है। ओके इसको कट किया, देखो कैन यू सी दिस साइटोन, स्पेरिकल बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, कैन यू सी दिस पार्ट स्पेरिकल बॉडीज, दे आर ऑल साइटोन्स। तो ये साइटोन होता है और ये एक्सॉन होता है, एंड डेंड्राइट्स, एंड दिस डेंड्राइट्स, राइट, न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। तो इसका बंडल जो है दैट इज नर्व, बट फाइबर्स, यू विल सी दैट फाइबर जो है इसके अंदर से ट्रैवल करता है, एंड ऑल दी सेल बॉडीज, ऑल दी साइटोन्स और पेरिकैरियंस, यू विल गेट देम इन दी गैंग्लियन। ठीक है, समझ में आया ये बल्जिंग क्यों है, ये स्वोलन स्ट्रक्चर क्यों है, वाई दिस इज बल्जिंग? क्योंकि साइटोन्स, ओके ये साइटोन्स या सेल बॉडी ये बड़े होते हैं, दीज आर न्यूरॉन्स। क्लियर ना? कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू सी दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. What are ganglia? They are cluster, cluster मतलब group, see this group, okay this gang, इसके अंदर है, ये कट करके दिखा है। They are cluster of neuronal cell bodies, cyton, from which nerve fiber may enter or may arise, या तो start होगा या तो end होगा। okay either they are coming toward this, होता है ना एक डेंड्राइट पर एक आता है, ओके सो दे आर आइदर अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी और दे आर एंटरिंग इनटू सेल बॉडी। इज इट फाइन? इज इट फाइन? तो सिर्फ डेफिनेशन समझो और उसका विजुअलाइजेशन समझो, ओके इसका एप्लीकेशन वगैरह जो है आप लोग वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़े। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर भी है, बच्चों लोगों को टीचर्स लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, ट्रिक करके फंसा कर एग्जाम में मार्क्स कट करते हैं। ओके एक जो है वन साइटोन एंड दिस एक्सॉन, okay is what is neuron, correct na? Neuron. What is nerve? okay ये गैंग्लिया है जिसमें सारे सेल बॉडीज है, एंड देन दिस क्लस्टर, ओके ये फाइबर, सारे ये सेल बॉडीज के जो है एक्सॉन्स है। ओके सो दिस इज नर्व, right now, and this is ganglia, correct? Neurons are of 3 types, neurons are of 3 types, nerves are also of 3 types। कौन सा? मोटर न्यूरॉन, अच्छा ये बाद में आएगा, पहले आएगा सेंसरी न्यूरॉन, नॉट इन ऑर्डर, ओके सेंसरी न्यूरॉन, ओके सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है, और 3 टाइप के नर्व कौन से होते हैं? दे आर ऑल्सो सेम, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। समझ में आया? अच्छा ये क्या होता है? व्हाट आर सेंसरी नर्व, क्या व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन? न्यूरॉन विच कैचेस द इम्पल्स, विच कलेक्ट द इम्पल्स दैट आर सेंसरी, वो सेंसेशन करेगा ना, somebody touch you, somebody prick you, you get a sensation, तो वो कौन पिक करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। एंड देर आर, हम लोगों ने देखा ना 100, वी हैव 100 बिलियन, ओके बिलियन बहुत ज़्यादा नंबर होता है न्यूरॉन्स, तो दे आर इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर, दैट ग्रुप इज कॉल्ड नर्व। तो मोटर, ओके सेंसरी न्यूरॉन्स का जो क्लस्टर होगा, जो नर्व बनाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स का, वो होगा सेंसरी नर्व। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes. पाथ क्या है सेंसरी न्यूरॉन का? ओके ये एपिथेलियल सेल है, आई एम राइटिंग ईसी, एपिथेलियल सेल। सेंसरी न्यूरॉन ने
कैच कर लिया, उनका क्लस्टर जो है वो सेंसरी नर्व है, दे विल टेक द इंफॉर्मेशन। वेयर दे विल टेक द इंफॉर्मेशन? कहाँ लेकर जा रहे हैं ये सिग्नल को, इम्पल्स को? वेयर? वेयर? Brain. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, कुछ ब्रेन के पास जाता है, कुछ सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो कैन वी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो है ये जो है एपिथेलियल सेल से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में इम्पल्स को कैरी करता है, ओके, दोज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। ओके, और सेंसरी नर्व, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज अ नर्व, राइट ना। अब यहाँ से जो निकला ये कहाँ गया? मसल या ग्लैंड के पास गया, मसल और ग्लैंड, राइट ना, मसल या ग्लैंड के पास गया। सो ये जो यहाँ से बाहर निकला और लेकर जा रहा है, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, एंड क्लस्टर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इज अ मोटर नर्व। और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो है, ओके, जो दोनों का काम करते हैं, इसका भी काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, और इन अदर वर्ड सेंसरी नर्व का या मोटर नर्व का, उसको कहते हैं, इन योर टेक्स्ट बुक वर्ड यूज दिस मिक्स्ड न्यूरॉन और मिक्स्ड नर्व, नॉट रिले वाला। सो दैट इज द रीजन, मैंने ये देखा तो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज। वो कहाँ होता है? ओके, इसका डायरेक्शन देखो, एपिथेलियल सेल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, सेंसरी न्यूरॉन का, सेंसरी नर्व का जो है काम खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ सेंसरी नर्वस सिस्टम टू सेंसरी नर्वस सिस्टम, इसके बीच में ही होता है। सो दैट इज द मिक्स्ड और अ रिले न्यूरॉन, राइट अ वर्ड मिक्स्ड। ओके, और फिर सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर। ओके, व्हाट आर एफेक्टर? योर मसल्स or glands are called effectors. Okay, so that is carried by motor neuron or motor nerve. Is this point clear? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, नॉट 1 मार्क का क्वेश्चन। फाइन, we will also discuss the kind of question asked. Is it clear? Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, इसका पाथ बता सकते हो आप लोग सेंसरी न्यूरॉन का? It is from epithelial cell or receptors to what? To what? Central nervous system. Just write a central nervous system, क्योंकि not all the impulses go to a brain. ब्रेन के पास जो थिंकिंग वाले वो जाते हैं, अदरवाइज जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले होते हैं, ओके, विदाउट थिंकिंग, जो कंडीशनड है, जो आपने प्रैक्टिस करके रखा, राइट, यू लर्न सर्टन स्किल। ओके, एक बार लर्न करेंगे तो फिर आपका ब्रेन के पास हर बार नहीं जाता है। डांस आप लोग सीखते हैं पर्टिकुलर स्टेप, सो यू प्रैक्टिस फॉर अ डे और 2 days और 3 days, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि 4th डे में आपको स्टेप्स जो है वो आने लगा, राइट, एंड देन यू डोंट प्रैक्टिस, सोचते नहीं, अपने आप करते। ओके, तो इन दैट केस व्हेन योर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड या माइंड कंडीशनड हो जाएगा, देन इट डजंट गो टू ब्रेन। तो बेटर राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका पाथ क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड्स, कैन वी से क्या वाला? इफेक्टर्स, ठीक है ना, ये याद रखो, ये पाथ रिलेटेड क्वेश्चन है। एसोसिएशन, कनेक्टिंग न्यूरॉन, एसोसिएशन और कनेक्टिंग न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो अंदर के अंदर ही अलग अलग टाइप के होते हैं, दे डू बोथ द एक्टिविटीज, राइट। अब न्यूरॉन में देखो, ओके, सी हियर, यहाँ पर गलती करेंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन और कनेक्टिंग न्यूरॉन, association or connecting neuron. But about nerves, I am taking into consideration that you know the difference between the neuron and the nerve. So in nerve you have sensory nerve, motor nerve and mixed nerve. Is it clear? Is it clear? Yes. हाँ, तो ये पाथ वगैरह दिया है, देखो कैसे क्या ट्रैवल करता है, ठीक है। गो थ्रू दिस डायग्राम ऑल्सो। हाँ, एफेक्टर से आता है, उसको कहते हैं एफेरेंट न्यूरॉन ऑल्सो, इफेरेंट न्यूरॉन ऑल्सो। ओके, एफेरेंट न्यूरॉन कौन से होते हैं? योर सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, दे आर फ्रॉम एफेक्टर्स,
to central nervous system, right? So they are also called efferent nerves. Efferent nerves, that is central nervous system to effectors. मालूम है ना इंग्लिश में आए. अगेन टेक इनटू कंसिडरेशन इन दोनों का, ये दोनों स्पेलिंग के बीच का डिफरेंस आपको मालूम है. Effect is cause. What affects rain? What is the effect of rain? And this is result. Effect is result. Okay. ICSE स्टूडेंट का इंग्लिश जनरली अच्छा होता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट फॉर अदर बोर्ड्स वी एम्फोसाइज मोर ऑन दिस ग्रामर ऑल्सो. ऑलराइट, ठीक है. और हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और नर्व. ओके, ये जो है इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल. दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सिलेबस, but still I will recommend you, okay, strongly recommend, please read this paragraph, and it is very interesting. It is very interesting ये कैसे होता है. okay, in next class I will discuss this. पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हमको डायग्राम भी ड्रॉ करना है. ओके, प्लीज रीड दिस. नाउ बोर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे फटाफट. आर यू रेडी? Yes. First, fill in the blank. A bundle of axons enclosed in a tubular sheath is called what? Bundle of axons is called what? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ. Nerve. नर्व, न्यूरॉन की गैंग्लियन. Nerve. ओके, बंडल ऑफ एक्सॉन इज नर्व ग्रुप. अच्छा, अगर मुझे आंसर चाहिए गैंग्लियन, तो इट विल बी बंडल ऑफ व्हाट? Cyton. Okay, cytons or cell bodies or perikaryotes, right? Long thread-like part of a nerve cell. Long thread-like part of a nerve cell. Axon. Axon. बराबर ना? सेल बॉडी, उसके ऊपर डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन. देन both axon and dendrite arise from. कहाँ से शुरू होता है ये डेंड्रॉन एंड एक्सॉन? Axon terminal. नहीं रे बाबा, सेल बॉडी ना, साइटोन ना. देखो ना, ये सेल बॉडी है, ये यही से डेंड्राइट आया और यही से ये नीचे वाला पार्ट आया एक्सॉन. करेक्ट ना? थिंक एन आंसर. डैश, ये तो सब लोगों को राइट आएगा. डैश आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. Neuron. डैश आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. Neuron. Nerve cell. या न्यूरॉन. नर्व सेल इज अ न्यूरॉन. ओके, द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? चेंज इन द ऑर्गेनिज्म. Response. A sudden change of external or internal environment is called stimulus. Okay, तो कुछ भी आ सकता है. देखो, I was talking about this 5 terms arrange and rewrite in a logical sequence. देखो, synapse, axon ending, cyton, node of Ranvier and dendrite. तो impulse travel करेगा सबसे पहला कहाँ से? Okay, where this impulse will be picked? What is the correct order? What is the logical sequence? ये भी एक important question है. First dendrite. Dendrite के बाद वो कहाँ जाएगा? Node of Ranvier. Cyton. क्या जल्दी है node of Ranvier की? Okay. उसके बाद में node of Ranvier. Jump करेगा वो node of Ranvier से. Then Axon ending. axon ending and finally at synapse. हाँ, ये सेकेंड वाला जस्ट कैंसल इट, क्योंकि वो वाला पार्ट है जो मैंने बोला ना नहीं है, बट स्टिल रीड इट. ओके, क्या नाम था उसका? सोडियम पंप वगैरह वो सब. ओके, फाइन. ये टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं एग्जाम में. ऑड वन आउट. डेंड्राइट, मेडुलर शीट, एक्सॉन, स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord. क्या रीजन लिखेंगे? ओके, दिस इज ऑड वन आउट. अदर्स
Parts of neuron. Neuron. Okay, or a spinal cord is a part of CNS, central nervous system. Okay, spinal cord is a part of CNS, central nervous system, and others are part of axon. Right? Mention the location of the myelin sheath. बताया था मैंने आप लोगों को. What is it? White sheet surrounding the axon. Axon. Okay, axon. Given below is the set of 4 terms, in which one term is odd. कौन सा odd है? Cyton, photon, axon, dendron. सब on से. Photon. Others are parts of Parts neurons. of neuron. What is cell body of a nerve cell called? Cyton. Specialized epithelial cell, which one receiving a stimulus set up a wave of impulse toward the central nervous system. Receptors. Muscles or glands receiving an impulse from the brain or a spinal cord contract or secrete substance. Effector. Receptors and effectors. A point of contact, ये MCQ है, 3 options are given. A point of contact between 2 neurons is termed as synapses, neuromotor junction, synapse. Synapse. आपके टेक्स्ट बुक में तो साइनैप्स दिया है. ओके, आई डोंट थिंक सर साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी दिया होगा. टेक्निकल टर्म, द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. अगेन साइनैप्स. 10th का name your favorite question. Okay, this you are expecting. Name the neurotransmitter stored at the terminal end of the axon. Neurotransmitter. Acetylcholine. Okay, draw a label diagram of a neuron. This was asked for 3 marks and name the following: node of Ranvier, Nissl granule and cyton. Okay, अभी diagram draw करते हैं and that will be end of the class. Okay, कल हम लोग ये पढ़ेंगे central nervous system वाला. And again draw label diagram showing the following part. State the function. फिर function पूछा है. What is a nerve made up of? What is nerve made up of? Bundle of neurons. Okay, very good. Eye and vision. Okay, तो यहाँ क्या दिया? Neurotransmitter and dash. ट्रांसमिशन ऑफ तो फंक्शन दिया. न्यूरोट्रांसमीटर देखकर एसिटाइल कोलिन मत लिखो. ओके, उन्होंने डायरेक्टली फंक्शन नहीं पूछा. आई का फंक्शन क्या है? विजन. सो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? ऊपर भी पूछा था. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. याद है वो डायग्राम ड्रॉ किया था. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स across the synaptic cleft. Write this answer. अब डायग्राम ड्रॉ करके खत्म करते हैं आज का क्लास. देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. वेरी सिंपल. स्टार्ट इट दिस वे. देखो ये ऐसे करो. शायद आप लोगों में से कुछ लोगों का ड्राइंग मुझसे अच्छा होगा. आई एम नॉट एट ऑल गुड इन ड्राइंग. So with this we have ended the first part of this chapter.